یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کو کریڈٹ نہیں دیتے، ہار جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دیکھیے ملا جی کی وجہ سے ہار گئے۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ایک سیاسی قوت یا طاقت بن کر ابھریں گے، یا پھر اسی طرح ہم لوگ ڈر ڈر کر خوف سے اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ نام نہاد سیکولرزم کی بھول بھلائیوں میں رہ کر جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور، صدر جلسہ جناب پروفیسر اقبال حسنین صاحب جو پرو چانسلر ہیں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کے، شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب کلیم حفیظ صاحب جو دلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہیں، میرے ساتھی میرے چھوٹے بھائی جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان اورنگ آباد مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری جماعت کے تمام معزز رفقا، میں سب سے پہلے جناب کلیم حفیظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو مضامین انہوں نے بڑی محنت اور مشکل کے ساتھ اس کو کاغذ پر انہوں نے لکھا، اس کا آج مجموعہ یہاں پر شائع کیا گیا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کی قلم میں اللہ اس میں طاقت دے۔ جو عنوان رکھا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل، جو یہاں پر ابھی بات کہی گئی اس تمام باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں، مگر میرے دل میں بھی بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں، میں انسان ہوں، کہ اگر بابری مسجد کی شہادت کے بعد 30-32 سال کے بعد اگر کسی کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جاتا تو یہ صرف مسلم اقلیت نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر انصاف ہوا نہیں ہوا۔ اگر نیشنل سیمپل سروے یہ کہتا ہے 2014 کا کہ ملک میں 60 لاکھ سے زائد بچے آؤٹ آف سکول ہیں، اس میں قریب 5% مسلمان آؤٹ آف سکول ہیں۔ اگر ڈراپ آؤٹ ریٹ 17.6% ہے مسلمانوں کا، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی اہم وجہ کنڈو کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس فائنینشل ویربطال نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ اگر گریجویشن میں 3% ہے، اور اگر انٹر جنریشنل موبلٹی میں مسلمان دلتوں سے کم ہے، جیل میں انڈر ٹرائل میں سب سے زیادہ ہیں، یو اے پی اے میں قانون لگانے میں آدیواسی دلتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نمبر آتا ہے، اور دلی کے دارالحکومت میں معزز حضرات، جن کو معزز کہنا بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو اور ان کو منتری بنا دیا جاتا ہے، اگر دلی کے ملک کی دارالحکومت میں احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، مگر احتجاج میں اگر گالی دی جاتی ہے مسلمانوں کو اور کھلے عام ان کو مارنے کی، ان کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وزیر داخلہ جناب امت شاہ کے انڈر جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ان نون پرسنس نے بات کہی ہے، تو پھر نون پرسنس کون ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سوالات ہیں، اور میں آپ سے پھر سے وہی بات، پرانی بات جو بحیثیت ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ
हम 75 साल इस मुल्क की आज़ादी को मनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम तमाम को ये मुहासिबा भी करना है, सोचना भी है कि क्या हम एक सियासी कुव्वत या ताकत बनकर उभरेंगे, या फिर इसी तरह हम लोग डर डर कर खौफ से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। मेरा मानना यह है, मेरी जमात, मेरी सियासी पार्टी का मानना यह है कि भारत को अगर और मजबूत करना है, भारत को मुस्तहकम करना है, बल्कि अगर भारत को चीन के बराबर खड़ा करना है, आंखों में आंखें डालकर चीन से या फिर एक सुपर पावर या एक ताकतवर मुल्क बनना है, तो भारत में अक़लियतों को उनका मुकाम हासिल होना चाहिए, मुकाम मिलना चाहिए। मगर भारत की अक़लियतों को अगर अपना मुकाम हासिल करना है तो भारत की अक़लियतों को एक फैसला लेकर अपनी सियासी ताकत को, अपनी सियासी शनाख्त को, अपनी सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं वो नाम निहाद सेकुलरिज्म की भूल भुलैयों में रहकर कुछ हासिल कर लूंगा, तो यकीनन इनफरादी तौर पर आपको ओहदे मिल जाएंगे, मगर इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम अक़लियत का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तल्ख़ हकीकत है, इसके कई तजुर्बे हो चुके हैं। लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि आपके 3 या 8 या 9 जीत जाने से क्या होता है, तो मैं ये पूछता हूं कि आप उन लोगों से क्यों नहीं सवाल करते जो भारत की कास्ट है, कम्युनिटी है, उनके 8-10 भी जीत कर आते हैं, तो उनसे कोई सवाल नहीं करता। सेकुलरिज्म यकीनन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और रहेगा, मगर सेकुलरिज्म को समझना जो मैं समझता हूं वो है कि एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मगर जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है वो एक मुनाफेखाना तौर पर वो सेकुलरिज्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। आसाम में अजमल साहब से अलायंस हुआ, आप नहीं जीते तो दाढ़ी वाले और जिससे सर पे टोपी है उस पर जिम्मेदारी लगा दो कि अगर ये नहीं होते तो हम जीत जाते। ये हकीकत है। दिल्ली में 82% मुसलमानों ने मौजूदा वजीर आला की पार्टी को वोट किया, मगर मौसूफ का बहादुर इतने हैं कि जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो वो गांधी की समाधि पर जाकर अपने आप को गूंगा बनाकर बैठ गए। ये हकीकत है सेकुलरिज्म की, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की। इसीलिए हमारा मानना यह है कि हमको अपनी एक लीडरशिप बनाना है। और मैं जानता हूं, मैं जब मनमोहन सिंह साहब का दूसरा दौर था यूपीए का, तो एक बीजेपी के अब एक बहुत बड़े एमपी हैं, मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का मसला पैदा हो गया। तो उस वक्त ऐसे ही हमारे जानने वाले बैठकर बोल रहे थे कि आपकी तकारीर से, मजलिस के पोजीशनिंग से मुल्क में ऐसा होगा, ये होगा, फुला होगा, और आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा वो सामने देखो आप, सेंट्रल हॉल में एक ग्रुप जा रहा था एमपीज का, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के एमपीज थे और करीब मेरे ख्याल से 30 या 35 एमपीज का ग्रुप था। मैंने कहा ये कौन कौन है इसमें बताइए, तो साहब ने कहा कि इसमें ये फला पार्टी के हैं, ये फला पार्टी के हैं, फला पार्टी के, सब पार्टी के थे। मतलब कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम? तो बोले हाँ वो कुछ डेट ऑफ बर्थ का मसला है। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ का मसले के लिए जा रहे हैं या हम डेथ बेड पर हैं? और डेट ऑफ बर्थ के लिए वजीर आजम से मिलने के लिए तमाम पार्टीज के ऊपर एक होकर जा रहे हैं, और आप में से सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा। ये चीज को हमको और आपको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इम्तियाज जलील साहब ने सही कहा कि औरंगाबाद में 22 साल के शिवसेना के एमपी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया। और मैं इस बात को मानता हूं कि हमको पिछड़े समाज के तमाम तबकात को, जिसको वंचित समाज कहते हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहिए।
इससे बिल्कुल एतराज नहीं है। और बिहार में हमने कामयाबी हासिल की, हम बिहार में एक अलायंस का हिस्सा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर कामयाबी हासिल की। अब बिहार की कामयाबी हो गई तो उसके बाद फिर इल्जाम हम पे शुरू होगा कि आपकी वजह से। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर ये लोग जीत जाते हैं तो मुसलमानों को क्रेडिट नहीं देते, हार जाते हैं तो बोलते हैं कि देखिए मुल्ला जी की वजह से हार गए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? आप जीत इसलिए नहीं पा रहे हैं कि सब के सब फिरका परस्त हो चुके हैं, और हम और आपको ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तल्ख रियलिटी है। अगर ये सच नहीं होता तो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, जो लीडर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी माशाल्लाह से 50 साल की उम्र में, वो हार गए हैं उत्तर प्रदेश से। और कहां से जीतते हैं? उस हल्के से जीतते हैं जहां पर करीब 25-30% माइनॉरिटीज का वोट था। और फिर इनका इल्जाम हम पर ये कहें आपकी वजह से सब हो रहा है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं। भारत में अगर फिरका परस्ती बढ़ रही है तो ये 30-40 साल की सॉफ्ट हिंदुत्वा जो बरसर इख्तिदार पार्टियों ने उसको इस्तेमाल किया, रीजनल पार्टीज ने इस्तेमाल किया, उसका ये नतीजा आज निकल रहा है। और अगर कल के दिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद, मुझे अल्लाह से मेरी दुआ है और हम कोशिश भी करेंगे, मगर क्या कोई गारंटी दे सकता है कि जो फिरका परस्ती का जहर कोने कोने में, जिस्म के कोने कोने में पहुंच चुका है, खत्म होगा? नहीं होगा। वो फिरका परस्ती रहेगी। तो ये हालात इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। तो ये इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना जरूरी है, पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करना जरूरी है, आपको अपनी आवाज को, अपने नुमाइंदों को कामयाब करना जरूरी है, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव क्यों ना हो, बल्दिया के इंतखाबात क्यों ना हो, असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात क्यों ना हो। हमको अपनी एक आवाज को, अपनी पहचान को, एक शनाख्त को रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं। अम्बेडकर ने सही कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही हर ताकत के कमरे की चाबी, बाबा साहब ने कहा था कि उसी में, और उसको हमको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।